Perfect. So I'll start with the introduction, and maybe by then we'll have the others also join in. Great. Thank you so much to all the participants, and we're extremely sorry. I mean, we do agree that normally we open the window 15 minutes prior, but today we opened it a little earlier because of a technical glitch. I think we all rolled out a message stating that we started 4:30. So we're really sorry for that. And yeah, so thank you so much for attending this session, for being a part of this session. Right now, we are now looking into a session which has to do more with the practical knowledge of how you can plan your lessons and how do you plan one based on the student capacities in your classroom. So, ma'am is going to be throwing a lot of light on that. जिथे आपल्याला आता कळणार आहे की आपण वेगवेगळ्या आय मीन लेसन प्लॅन्स कसे बनवणार आहोत and how effective is a lesson plan and why is it that we need a lesson plan. बऱ्याच वेळा असं होतं की आपण एखादा चॅप्टर खूप वर्षापासून शिकवतोय, but still when you enter the same classroom, the children in the classroom are not going to be the same. So for your students, so that the lesson is delivered better, it's always advisable to be having a better lesson plan every time you plan the lesson. Starting with a little about SR Darvi Foundation. SR Darvi Foundation is a not-for-profit organization. It works for teacher welfare and teacher empowerment. The foundation has been founded by Sita Darvi and Ramchandra Darvi. Both of them, I mean, Sita ma'am has been a teacher herself, and somewhere down the line is where she realized that teachers, I mean, during the pandemic, there has been a lot of times wherein doctors, I mean, we had the healthcare workers, we had the others who were equally respected and awarded, but somewhere down the line, people did forget की टीचर्सनी पण खूप मोठा त्यांचा रोल होता. म्हणजे मुलांना ऑनलाईन शिकवणं was not at all an easy job. But still, all our teachers have been working really hard, and keeping that as the core motive, the foundation was created so that teachers are respected, are acknowledged for their services that they have been giving throughout. So SR Ravi Foundation has organized, we normally organize workshops, webinars, trainings for teachers. We have award functions for teachers. All of these are free of cost, mainly ताकी कारण तुमचं अपग्रेडेशन, तुमचं अपस्किलिंग आणि तुमच्या बेनिफिटसाठीच हा एंटायर सेटअप हॅज बीन फॉर्म्ड. निर्मला मॅम सुद्धा आपले एखाद्या वेबिनारचे पार्टिसिपंट होते अँड शी व्हॉलेंटियर्ड अँड शी आस्क्ड इफ शी कुड टेक अप वन सेशन. आणि तसे आज ते आलेले आहेत आपल्या इथे टू टेक अप अ सेशन ऑन इफेक्टिव्ह लेसन प्लॅनिंग. टू जस्ट कन्क्लूड विथ अ लिटल इज दॅट की तुम्ही आता हा 1-1.5 तासाचा सेशन अटेंड करताय, ज्याच्यासाठी तुम्हाला एक सर्टिफिकेट प्रोव्हाइड केलेलं जाईल. आय एम नॉट ऑडिबल? Yeah, you're perfectly audible. Great. Harshlata ma'am, I think there might be some network issue at your end. Great. तर सर्टिफिकेट डाउनलोड करण्यासाठी आम्ही टीचर टॉक ऍप विच इज अ टीचर कम्युनिटी ऍप्लिकेशन जे तुम्ही डाउनलोड करू शकता. यू कॅन यूज दिस ऍप टू बेसिकली पोस्ट ऑल दॅट यू डू इन युअर क्लासरूम, ऑल दॅट बेसिकली टू अंडरस्टँड की व्हॉट इज अ लाईफ ऑफ अ टीचर. सो यू कॅन शेअर न्यूजेस, यू कॅन शेअर वी शेअर GRs, जे गव्हर्नमेंटचे एज्युकेशनल GRs येतात ते आम्ही शेअर करतो. इव्हेंट्स जे असतात ते, वर्कशॉप्स, वेबिनार्स, award functions, his सगळे details is we publish it or we post it over the app. We really would encourage all of you all to be a part of it. At the same time, we also would request you to please share the app as much as possible, because you can buy a lot of products online. Amazon's पूर्ण product list ही app वर आहे. That as in when you earn points, if you refer your app with your code, you get extra points. With that, you can buy products and you can redeem it. So each point is equal to 1 rupee, and your certificates will also be provided to you over the app. तर ऍप मध्ये कसं डाउनलोड करायचं तुमचं सर्टिफिकेट आणि पुढचं जे काही प्रोसेस आहे ते सेशन झाल्यावर मी नक्कीच सांगेन. अँड नाव ओव्हर टू आवर स्पीकर फॉर द डे,
Nirmala ma'am. Nirmala ma'am is a child life transformation coach who helps parents through counseling and teachers through training on aspects of child education and learning. She's trained more than 5,000 teachers and 10,000 students all around India. Uh, she to help children overcome learning losses post pandemic and wean them away from gadgets and screen and take up creative writing has been one of the most, I mean, after I read through all that she's done, I think this was something which is most important. Current lockdown made we all, not just children but even people like us, we were so addicted to phones, and how could we get rid of it was something really, I mean, I think that's one of the biggest things that she's done, and thank you so much. Awards that she has won so far is a Human Right Educator of the Millennium, Creditary Woman for Medal, and many more. So thank you so much, ma'am, for being a part of this session, and thank you so much for giving in your valuable inputs and training our teachers today. Over to you, ma'am. Thank you. Yeah, thank you, Lakshmi. And it is a pleasure to be with all of you. पण कोणीच मला दिसत नाहीये. तर तुम्ही व्हिडिओ, तुम्हाला काही प्रॉब्लेम नसला तर व्हिडिओ ऑन केलं तर मला बरं वाटेल. पण तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असला तर आय हॅव नो प्रॉब्लेम. व्हिडिओ ऑन केलं तर मला कळेल की कोण आहे. तर आय जस्ट गिव्ह यू अबाउट 30 seconds. तर तुम्ही व्हिडिओ ऑन केला तर वी कॅन. Yeah, thank you, Ambrin, Manjusha, Sonali, Vrinda, Rupali, Manoj, Radha. Thank you, Deepika, Somnath. Yeah, thank you very, very much. तर I just want to tell you की माझा जन्म मुंबईला झाला आणि मी 30 वर्ष मुंबईला होते, पण आता पुष्कळ वर्षापासनं मी मराठी जास्त बोलत नाहीये. You will have to allow my that other number for screen sharing. Just a second, ma'am. This one is on mobile. Okay. Because no current goes off here and I'm not able to immediately log in, so I have done both, so that मी बोलत बस राहिले तर समजा करंट गेला आणि मला झालं नाही, जमलं नाही, तर at least I can keep talking. We've given you access. Just check if it's working for you right now. Oh yeah. Yes, great. Yeah. Thank you. तर फारच चांगलं वाटतंय पुष्कळ दिवसांनी मराठी बोलायला. आणि समजा माझ्यानी काही चूक झाली मराठी बोलताना तर हे आय मीन आय एम शुअर यू विल अंडरस्टँड. आणि दुसरं म्हणजे की दिस प्रेझेंटेशन इज इन इंग्लिश, पण समजा तुम्हाला पण मी बोलणार मराठीमध्ये आणि जे टेक्निकल वर्ड्स आहेत ते तुम्ही प्लीज स्वतः ट्रान्सलेट करून घेतलं तर बरं होईल. तर लेट्स स्टार्ट. But before that, so sorry to interrupt. I think we can have it like a mix of Hindi, English, and Marathi. Karan, I think there are a lot of others also who are not Maharashtrians. So it might be easier, like a midway through. Yeah, if Hindi works great for everyone, Hindi and English. Thank you. Yeah. So before I start, I want to tell you now after the NEP 2020. There is a paradigm shift in education. Before this, every time education was only towards getting good marks and being the first in the class and all. But today it's not like that. After the NEP 2020, because of the NEP 2020, there is going to be a new system and all these other things are going to be implemented. And as teachers, we have to understand that education sirf marks lene ke liye nahi hai. Education is to prepare you ke aapke future ke liye how can you prepare the children for the future. So it has been observed that that
learning was only a textbook oriented, and it was only for marks. But today NEP 2020 says that holistic होना चाहिए और integrated होना चाहिए, यानी उसमें art भी होना चाहिए, उसमें डांस भी होना चाहिए, ड्रामा भी होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, यानी सारी तरह के बच्चे जो हैं, एवरी टाइप ऑफ लर्नर शुड बी इंक्लूडेड, एंजॉयबल होना चाहिए और एंगेजिंग होना चाहिए. एंड दिस इज लेसन प्लान करने से पहले ये एक चीज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए, और आपकी जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है. क्योंकि हम देखते हैं कि नया मोबाइल आया तो हम अपडेट करते हैं, नया कुछ आया तो हम उसको अपडेट करते हैं, पर कभी भी हम अपना टीचिंग तरीका कभी अपडेट नहीं करते. तो क्यों? टीचर्स भी अपडेट होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसर्च ऐसे कह रहा है कि कोई भी एक स्किल जो है वो सिर्फ 5 साल तक रहेगी. हर 5 साल में टेक्नोलॉजी बदलेगी, हर कुछ बदलेगा, और अगर हम नहीं बदले तो वी विल नॉट बी एबल टू फेस द वर्ल्ड. फिर हम रिडंडेंट जिसको बोलते हैं, वी विल बिकम रिडंडेंट, यानी डायनासोर जैसे थे ना वैसे हम हो जाएंगे. तो इसके लिए यू हैव टू ट्राई एंड डू इट. And education should be for character building, and for not only for enabling the to be compassionate to, but to prepare them for fulfilling employment. और एम्प्लॉयमेंट ऐसा होना चाहिए कि क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में भी आप देखो आपके बच्चे आजकल इतने स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि वो अगर अपडेट नहीं करते हैं तो फिर उनका प्रमोशन रुक जाता है, उनका इंक्रीमेंट रुक जाता है. तो अगर आप अपने बच्चे के लिए वैसे चाहते हो, और तो अगर आप जिस स्कूल में पढ़ाते हो वहां अगर आप अपने बच्चों को इस तरह का एजुकेशन आप दोगे तो इट विल हेल्प द चाइल्ड इन अ बेटर वे. और ये एक मैं आपको बहुत एक इम्पोर्टेंट सर्वे बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये एम्प्लॉयबिलिटी सर्वे है, और इसमें ये कहा गया है कि अगर ये सारे स्किल्स नहीं हो, तो अगर 90 नहीं 95 नहीं 100% वाला बच्चा भी हो, और अगर वो किसी कंपनी में जाता है और उसको ये सब स्किल्स नहीं होते हैं, तो उसका जो अपॉइंटमेंट है वो तो मिल जाएगा उसको किसी भी तरह से, पर उसका जो आगे का जो ग्रोथ है, या फिर कभी कभी जो ऐसे बच्चे हैं, ऐसे एम्प्लॉयज है जो जिनके पास ये सारे स्किल्स नहीं है, उनको वो लोग निकाल भी देते हैं, क्योंकि आजकल तो बस एम्प्लॉय देम एंड थ्रो देम अवे इफ दे आर नॉट. तो आपको मालूम है पेंडेमिक के टाइम कितने लोगों ने अपना जॉब लूज किया है, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडेप्टेबिलिटी, कोलैबोरेशन. अब मैं चाहती हूँ कि अगर आपको ये कोई वर्ड नहीं पता है तो आप मेरे को चैट में लिख सकते हैं. लक्ष्मी, एनीथिंग इन द चैट, आई रिक्वेस्ट यू टू रीड इट. हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You're audible. Anything, so any word which you don't understand, इसका मीनिंग क्या है सबको मालूम है? इनिशिएटिव, सेल्फ मैनेजमेंट, लीडरशिप, रिलायबिलिटी, ये सब. हाँ, तो मोस्ट ऑफ यू हैव सेड दैट यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू वेरी मच. तो अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप जब लेसन प्लान लिखोगे तो आपको ये करना है कि सिर्फ कंटेंट जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है. नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है. पहले कहते थे नॉलेज इज किंग कहते थे, पर अभी ऐसा नहीं है. अभी स्किल और एटीट्यूड जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ. हमारे जो सबसे रिचेस्ट इंडियन एंड वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड धीरूभाई अंबानी हैं. आज उनका बिजनेस
इतना फैला हुआ है, टेक्नोलॉजी हो या गारमेंट्स हो या कुछ भी हो, पेट्रोलियम हो, कुछ भी हो, पर मैं एक पूछना चाहती हूँ, क्या उनको टेक्नोलॉजी मालूम है? क्या उनको गारमेंट्स के बारे में मालूम है? हर एक का नॉलेज क्या उनको है? प्लीज पुट योर आंसर्स इन द चैट. Does he have all the knowledge of everything? इतना बड़ा इंडस्ट्री उन्होंने खड़ा किया है, इतना बाइफर्केट किया है. Yeah, what are the answers, Lakshmi? Ma'am, I don't think they're answering so far. Yes, there are a couple of them. We have Vision plan. कोई कह रहा है हाँ, कोई कह रहा है ना. तो नॉलेज उनको उस चीज के बारे में बहुत कम है, टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कम है, पर जो उनके पास है वो स्किल है, बिजनेस करने का स्किल. और सबसे बड़ी बात जो है मैनेजिंग एबिलिटी. यस, जैसे ने कहा है मैनेजिंग एबिलिटी. और सबसे बड़ी बात है एटीट्यूड. एटीट्यूड. आज अमेज़न से आप खरीदते हो, पर आप एक बार इस पे जाके देखो, स्टोरी रीड करो धीरूभाई अंबानी और जेफ बेजोस के बारे में, कि वो लोग इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा किया. तो एनीवे, आई वोंट वेस्ट मच टाइम, आई वांट टू गो बैक टू द टॉपिक. तो जल्दी जल्दी हम ये करते हैं. तो एक मैं आपको स्ट्रेट अवे बता देना चाहती हूँ कि जो आपकी टीचिंग फेज है उसमें 3 फेजेस हैं. जो आप पढ़ा रहे हो उसमें 3 हैं. एक तो है प्लानिंग. सो प्लानिंग म्हणजे काय की लेसन, before you start the lesson, okay, you are supposed to plan the lesson, and that is what we call lesson planning. Second is the interactive phase where you're implementing, and the third one is evaluation, which is the phase after the teaching. And when you're making your lesson plan, it is very very important that you have to take into account all these 3 phases. Okay, now I'll go further. तो लेसन प्लानिंग यानी क्या? तो लेसन प्लानिंग यानी पहले डिसाइड करना कि what I want students to learn. अगर मैं साइंस का एक चैप्टर ले रही हूँ तो मुझे मालूम है कि इस चैप्टर में 10 टॉपिक्स है, तो सिर्फ वही टॉपिक मैं सिखाना चाहती हूँ, या मैं उसके साथ ड्राइंग बनाना सिखाना चाहती हूँ, बात करना सिखाना चाहती हूँ, ग्रुप वर्क सिखाना चाहती हूँ, डिस्कशन सिखाना चाहती हूँ, या फिर समझो उनका जो इंटर रिलेशन है, एक दूसरे से बातचीत, कम्युनिकेशन, वो सिखाना चाहती हूँ. मैं क्या बच्चों को सिखाना चाहती हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है. अब ये जब बन जाएगा आपके मन में, आपको पता चलेगा कि ये मेरा एम है कि मैं अगर प्लांट्स के बारे में बच्चों को सिखाना चाहती हूँ तो उसके साथ मैं उनको एक प्लांट उगाना सिखाऊंगी, उसको उसकी देखभाल सिखाऊंगी, उसको अलग अलग कंडीशंस में रखना बोलूंगी, फिर उनको बोलूंगी कि ये प्लांट क्यों नहीं बड़ा या क्यों ज्यादा बड़ा. ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर व्हेन यू आर गिविंग अ लेसन. दूसरी बात ये है कि एक्टिविटीज क्या करोगे इसके लिए. अभी एक्टिविटीज का मतलब ये नहीं है कि मैं प्लांट सिखा रही हूँ तो मैंने एक प्लांट ड्रॉ करने को बोल दिया और बच्चों ने प्लांट ड्रॉ किया तो बस हो गया. अब इसमें मुझे थोड़ा ध्यान देना होगा कि इस एक्टिविटी में मैं बच्चों को कितना ये कर रही हूँ. Yes, subject enrichment activities. Yes, Rupali, thank you very much. कौन से एक्टिविटीज मैं बच्चों को दे रही हूँ, और इस एक्टिविटी के बाद बच्चे में क्या चेंज है. लर्निंग का मतलब क्या है? चेंज इन बिहेवियर.
लर्निंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कुछ कर रहे हो और आपको फोर्स किया जा रहा है, आप सब लोग कर रहे हैं इसलिए आप कर रहे हो, उसका मतलब लर्निंग नहीं है। अगर मैं रास्ते पे जा रही हूँ और मैंने मेरे हाथ में केला खा रही हूँ और मैंने केले का छिलका रास्ते पे फेंक दिया, तो ये मेरा बिहेवियर है। और अगर कल मेरी टीचर ने कहा कि मुझे अच्छी तरह से अपना मैं स्टूडेंट हूँ, एक 10 साल की स्टूडेंट हूँ, और कल अगर मेरी टीचर ने मुझे कहा कि नहीं, वी हैव टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन, इफ यू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन, इससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो दूसरे दिन जब मैं कुछ देखूंगी तो मैं इमीडिएटली डब्बा ढूंढूंगी और मैं उसको नहीं तो अपने बैग में रख के घर में फेंकूंगी। नाउ दिस इज द चेंज इन द बिहेवियर दैट हैज हैपेंड टू मी बिकॉज आई हैव लर्नड समथिंग। और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक टीचर के लिए, कि आप सिर्फ उसको नहीं पढ़ा रहे हो कि 1+1 2 होता है, पर ये उसको पढ़ा रहे हो कि ये 1 है और ये 1 है, तो इसको हम किस अलग अलग तरीके से इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप लेसन प्लानिंग करो तो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, एंड द थर्ड पार्ट इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि आप बच्चों का अंडरस्टैंडिंग उससे पता चले। अब इसके लिए 2 चीजें होनी चाहिए कि आप बच्चों को एसेस क्यों करते हो। कोई बता सकता है चैट में कि आप बच्चों का टेस्ट क्यों लेते हो? एनीवन प्लीज पुट इट अप इन द चैट। A kind request if all the teachers could participate. Maybe, I mean, to me, Hindi, Marathi, English, whatever you're comfortable with, please नक्कीच contribute करा. For evaluation, how much children has understood, to test the capacity and level of the child. और एक बार सोचिए कि क्लास में 2 लोग हैं, सिर्फ बच्चे नहीं है, और कौन है? और कौन है क्लास में? Teacher is also there in the class, ma'am. Yeah, correct. Very Thank good. you, ma'am. Who told it? Who told it? Rupali Mahindrakar, ma'am. Very good, Rupali. Thank you, तो ma'am. आप इवैल्यूएशन से आप क्या how we are teaching? Yes, Vrinda, how we are teaching? Yes. Correct. Yes. आप जब इवैल्यूएशन करते हो तो यू नो, मैं तो अपने आप को बहुत अच्छा टीचर समझती हूँ। अब भी मैं समझती हूँ कि आप जो भी मैं कह रही हूँ आप लोग सब समझ रहे हैं, पर इसमें अगर 40 स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, तो उसमें से क्या गारंटी है कि 40 के 40 मेरे को समझ रहे हैं? जब तक कि मैं आपको लेसन प्लानिंग ना सिखाऊं और आप उसको ना बनाओ और आप उसको मुझे ना दिखाओ और मैं उसको देख के उसको चेक ना करूं, तब तक मैं नहीं मान सकती हूँ कि आप सीख गए हो और मेरी टीचिंग अच्छी है। How many of you agree? आप एग्री करते हो? या थैंक यू माधुरी, या संजीवनी, थैंक यू उमा, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये है कि मैं आपको बार बार बीच बीच में क्वेश्चंस पूछ रही हूँ और आप उसका जवाब दे रहे हो। ये मैं क्या देखने की कोशिश कर रही हूँ? आप सोए नहीं or not? हाँ, आप सोए नहीं, आप अटेंटिव हो। और दूसरी बात मैं क्या देखने की कोशिश कर रही हूँ? What am I trying to see? Whether Are we are attention. learning is happening or not? How much can understand? Yeah, how many of you have understood whether learning is happening? And connection, interaction, understanding, ये सारी चीजें। तो अभी मैं बिना कोई टाइम गवाए I'll go to the next। तो ये लेसन प्लानिंग में ये सारे स्टेप्स आप बिल्कुल याद रखिए। ये आपको ऑलरेडी मालूम होगा
कि एक तो ऑब्जेक्टिव, यानी आप क्यों पढ़ा रहे हो, और आप इसके यानी अगर मैं एक टॉपिक लेती हूँ और मेरा 40 मिनट उसमें जाता है, तो इस 40 मिनट में मुझे पता करना है कि मैं क्या करना चाहती हूँ। मैं उनको सिर्फ ये आंसर बाय हार्ट कराना चाहती हूँ, या ये टॉपिक के साथ मैं ये एक्टिविटी करूंगी ताकि वो लोग ये एक्टिविटी करके उनको ये हो। देन इंट्रोडक्शन, नाउ ये इंट्रोडक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक यू नो कभी कभी क्या होता है कि क्लास में जो बच्चे आते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। कोई घर में बिना ब्रेकफास्ट खाए भी आता है, कोई अपनी मम्मी से डांट खा के आता है, कोई आते समय किसी फ्रेंड के साथ उसका झगड़ा हुआ होता है, कोई डर के आता है कि कल मुझे मैम ने डांटा था और मारा था, तो आज मुझे बहुत डर लगता है। तो जब आप उसका इंट्रोडक्शन ठीक तरीके से करोगे तो उसमें क्या होगा कि बच्चा जो है वो बिल्कुल खुल जाएगा। अभी समझो कि अभी मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने पहली चीज क्या की, मैंने क्या की, कोई बता सकता है? या आपने हमें क्वेश्चन पूछे मैम? यस मैम, आपने हमें क्वेश्चन पूछे। हाँ, क्वेश्चंस पूछे, फिर अपने आप के बारे में बोला। Yes. और मैंने आपके मराठी में, जिनको मराठी आता है तो आई स्पोक इन मराठी, so that I thought many, because it's Maharashtra, many people maybe preparation of the topic beforehand. Yes, Sarika, how the effective the teaching learning process is happening, कौन कौन उपस्थित है ये देखा। यस, तो दिस इज इंट्रोडक्शन, फिर प्लानिंग लर्निंग एक्टिविटीज, फिर असेसमेंट एंड कंक्लूजन। यानी कोई भी चीज आप शुरू करते हो तो उसको बंद भी करना चाहिए, तो कंक्लूजन होना चाहिए। आप उसको खुला नहीं छोड़ सकते हो। आपने जो पढ़ाया है वहां से लेके एंड तक आपको उसको खत्म करना है, और जब जो आपने उनको पढ़ाया है उसका कंक्लूजन करना चाहिए एंड क्रिएट रियलिस्टिक टाइमलाइन। यानी ये सब चीजें, टाइमलाइन यानी इसके बाद मैं ये करूंगी, इसके बाद ये करूंगी, इसके बाद ये करूंगी, इसके बाद ये करूंगी, ये सारी चीजें आपको लेसन प्लान करते समय याद रखनी है। अब आगे मैं जाऊंगी, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये मैं आपको बिल्कुल एकदम इसमें बताने वाली हूँ। आई वोंट वेस्ट मच टाइम, कि पहले आप एक वार्म अप करो। अब मैं जब डाइजेशन सिखाती थी तो मेरा वार्म अप एक्टिविटी ये नहीं होता था कि बच्चे लोग अभी मैं आपको सिखाने वाली हूँ डाइजेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ये नहीं सीखोगे इसमें से 4 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो ऐसे अगर आप वार्म अप करोगे तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे कैसे करेंगे बताइए? डरेंगे कि नहीं डरेंगे? यस मैम, यस। डर जाएंगे ना? यस। पर अगर मैं बोलूं कि अच्छा तुम लोग ने ब्रेकफास्ट के लिए क्या खाया, सुबह आपने ब्रेकफास्ट के लिए क्या खाया, कितने बजे खाया? 7 बजे। क्या खाया? पोली भाजी, या फिर पराठा, या फिर इडली सांभर, ऐसे। अब कितना टाइम हुआ है? अब 9:30। अब भूख लगी है? हाँ मैडम भूख लगी है। क्यों भूख लगी है? 7 बजे तो खाया था ना? नहीं मैम वो सब डाइजेस्ट हो गया। अब जैसे आप बताओगे कि ऐसी चीजें, तो जो बच्चा झगड़ के भी आया है, जो बच्चा मूड में नहीं है आपसे पढ़ने के लिए, वो तुरंत क्या होगा बताइए? He will attract towards the lesson, ma'am. Very good. In ready position, ma'am. Readiness will. Yeah, you have to bring them. He will start interacting. Brinda says they will start with interacting. तो ये और आप उसका प्रीवियस नॉलेज भी चेक करोगे कि उसको मालूम है क्या कि डाइजेशन के लिए कितना समय लगता है। अब आप उसको पूछोगे कि कितने बजे खाना खाओगे, आपको उस टाइम क्यों भूख लगेगी, डाइजेशन यानी क्या होता है, खाना कहाँ से कहाँ जाता है,
और पेट में क्या होता है, और वो जो एसिड जो पैदा होते हैं उसके वजह से आपको क्यों भूख लगती है, यानी आपका पेट क्यों जलता है, ये सब आप जब पूछोगे तो बच्चा तुरंत, भले ही आप उसको 3 से 5 मिनट, इसमें आपको ज्यादा समय डालने की जरूरत नहीं है। अगर 40 मिनट का पीरियड है तो आप 5 मिनट उसमें आप डालिए। उसके बाद जो आप उसको क्वेश्चन पूछने वाले हो वो जरूर लिखिएगा। वहां जाके आप मत डिसाइड कीजिए कि मैं ये पूछूंगी, पहले से ही डिसाइड करके रखिएगा कि आप क्या क्वेश्चन पूछोगे। मैं हमेशा वैसे ही करती थी, भले ही 10 क्वेश्चंस हो उसको पूछती थी। उसके बाद अगर कोई चीज आपको दिखानी है तो इसको बोलते हैं आई डू यू वॉच। आई डू यू वॉच यानी अगर मुझे कुछ दिखाना है, जैसे मैथ्स दिखाना है या कुछ भी सिखाना है, तो आई डू यू वॉच का मतलब है मैं करूंगी और तुम लोग देखो। उसके बाद गाइडेड प्रैक्टिस। गाइडेड प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि वी डू यानी बच्चे करेंगे और टीचर देखेगी। ओके, वी डू यानी टीचर देखेगी। उसके बाद होता है कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस, डू टुगेदर। गाइडेड प्रैक्टिस में टीचर भी होती है और स्टूडेंट भी होता है। जैसे बच्चा लिख रहा है कि ये दिस माइनस दिस और यहाँ से मुझे इसको बोरो करना है, और अगर बच्चा चूक गया तो वी डू यानी टीचर और बच्चे साथ में, पर ज्यादातर बच्चा करेगा, पर टीचर भी वहां गाइड करने के लिए रहेगी, इसके लिए उसको गाइडेड प्रैक्टिस बोलते हैं। उसके बाद होता है कोलैबोरेटिव यानी बच्चे साथ में करते हैं, सारे बच्चे। उसके बाद इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस यानी सारे बच्चे अपने अपने ये करते हैं एंड टीचर उसको देखती है। उस वक्त वो कुछ नहीं बोलती, जो उसको बोलना होता है अब तक उसका। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के समय बच्चे अपने आप से करते हैं, टीचर को बस चुपचाप देखना। अगर बच्चा गलती भी करता है तो भी करने दो, क्योंकि गलती इज द बेस्ट वे टू लर्न। गलती जब तक नहीं करोगे तब तक तुम कुछ नहीं सीख सकते हो। एंड असेसमेंट में बच्चा आपको आप उसको एसेस करोगे किसी भी तरह से। आप उसको राइटिंग में एसेस करो, टॉकिंग में एसेस करो, किसी भी तरह से। और लास्ट में होता है रैप अप यानी रिकैप, यानी जो आपने सिखाया। तो ये जो 8 चीजें हैं उसको आपको करेक्ट टाइम देना पड़ेगा। किसी को 2 मिनट लग सकते हैं, किसी को 10 मिनट लग सकते हैं। हर एक चीज हर दिन करने की जरूरत नहीं है। एक दिन आपने गाइडेड प्रैक्टिस किया तो उस दिन कोलैबोरेटिव और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस मत करो, दूसरे दिन आप गाइडेड प्रैक्टिस मत करो, कोलैबोरेटिव करने की। 8 एक ही दिन में करने की जरूरत नहीं है, यानी दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स। और ये जो बीच वाले जो स्टेप्स है 3 से लेके 6 तक, वो आप कोई एक कर सकते हो या 2 भी कर सकते हो, पर 1, 2 और 7, 8 हो सके तो हर एक लेसन प्लान में उसको डाल दो। यहाँ तक कोई एनी डिफिकल्टी? No, ma'am. समझ में आ रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes. बहुत लोगों ने फिर से ये बंद किए, सिर्फ 1 या 2 लोग हैं जिन्होंने ऑडियो रखा है। प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन। ऑडियो बंद कर दो प्लीज और वीडियो ऑन रखो। ओके, shall I go ahead? Yes, ma'am. Okay, let me now go ahead. Okay, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। Yes. अब आपको ये करना है कि स्ट्रक्चर ऑफ लेसन प्लान कैसे होता है। आप किसी भी तरह आप स्ट्रक्चर कर सकते हो। ये मैंने बहुत सारे लेसन प्लान्स बनाए हैं, और मैंने कंपनीज के लिए भी हर एक टॉपिक पे मैंने लेसन प्लान और माइंड मैप बनाया है। तो मुझे ये बहुत ही इजी और बहुत सुंदर लगा। तो इसमें क्या है कि यहाँ आप ऊपर आप उसका टॉपिक लिखो
फिर कितने मिनट है वो लिखो, क्लास साइज लिखो, और उसके बाद ये लर्निंग आउटकम्स मैं आपको बाद में दिखाऊंगी ये कैसे लिखते हैं लर्निंग आउटकम्स। यहाँ आपको लिखना है कंसेप्ट टू एक्सप्लोर इन द लेसन, यानी आप कौन से टॉपिक ले रहे हो, यानी लेसन तो बहुत बड़ा होगा पर उस 45 मिनट्स या 40 मिनट्स या 30 मिनट्स या 35 मिनट्स में आप ये पढ़ाओगे। आपको अगर डिवीजन पढ़ाना है तो पहले आप डिवीजन करवाओगे या क्या क्या करोगे उसमें, वो आपको लिखना है। अगर आपको इंग्लिश का लेसन पढ़ाना है तो आप आज वो कितना पार्ट पढ़ाओगे, उसमें क्या क्या आप पढ़ाओगे, वो आपको लिखना है। और ये स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज, यानी डिवीजन होने से पहले बच्चे को क्या पता होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन या टेबल्स। तो इसमें एक दो आपको एक्टिविटीज ऐसे लिखने हैं कि ये चीज बच्चे को पता होना चाहिए। तो आप पहले उनको बोलोगे 12 into 3 कितना है, 14 into 7 कितना है, ये आपका प्री रिक्विजिट नॉलेज होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आप एक पेपर ले लो और उसको यानी कैसे आप उसको ये करोगे, डिवाइड करोगे, बच्चे को पूछ लो कि आप 6 लोग हो, अभी इसको इक्वली डिवाइड करो, या 8 लोग हो, तो ये भी हो सकता है कि डिवीजन हो। फिर एसेंशियल क्वेश्चंस, आप उसको क्या क्वेश्चंस पूछोगे। रिक्वायर्ड वोकैबुलरी, ये तो मैथ्स में नहीं आएगा, पर अगर हिस्ट्री वगैरह है और कोई भी चीज है, जैसे कोई डिफिकल्ट वर्ड्स जो है वो आपको बताने हैं, तो वो सारे वर्ड्स आप लैंग्वेजेस मैम। हाँ, लैंग्वेजेस में सिर्फ नहीं, साइंस में भी हो सकता है। जैसे अगर साइंस में बच्चे को फोटोसिंथेसिस के बारे में नहीं मालूम, या डाइजेशन मालूम नहीं है, सिमुलेशन वर्ड मालूम नहीं, तो वो Even in difficult word, math we can give ma'am. yeah, you can give in every this yeah, definition keywords, yes Sonali, perfect. और लर्निंग मटेरियल, यानी आप अगर पहले से ही लिखोगे कि लर्निंग मटेरियल क्या है, क्योंकि कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि न्यूज़पेपर लेके जाती हूँ। अगर मुझे फ्रैक्शन सिखाना है तो न्यूज़पेपर क्लास में लेके जाती हूँ। अगर मुझे कुछ और सिखाना है तो मैं कुछ और लेके जाती हूँ। तो ये मुझे पहले से ही पता होना चाहिए। और अगर मेरे पास उतनी चीजें नहीं है तो समझो अभी मैं परसों ले रही हूँ ये क्लास, अगर मुझे लर्निंग प्लीज teachers, please mute yourself. ठीक है? Did you understand till here? Hello? Yes ma'am, yes. Yes, ma'am. या अब ये होगा आपका पहला पेज। तो पहले पेज पे आप इतना लिखोगे, हॉरिजॉन्टल लिखो, वर्टिकल लिखो, जैसे भी लिखो आप ये लिखोगे। और उसके बाद ये 2 पेजेस होंगे, पर ये पेजेस मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि आप स्टार्ट कैसे करोगे। फिर उस दिन आपने क्या इंस्ट्रक्शन देना है, कौन सा तरीका यूज करना है, वो जो 3 से लेके 6 तक आपको कौन सा तरीका यूज करना है। फिर गाइडेड और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी करना है, कैसे करना है, असेसमेंट कैसे करना है और फॉलोअप कैसे करना है, ये बाद में आपको दिखाऊंगी। पर पहले अभी मैं आपको ये वाला जो पेज है वो कैसे भरना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। इज दैट क्लियर? हेलो? Yes, ma'am. Yes ma'am, yes. हाँ, Yes, ma'am. तो पहले क्या है कि Ma'am, हाँ, what about aims and objectives of the lesson? yeah, that I'm going to tell you now. Learning outcome is aims and objectives. Okay. That is what I'm going to teach you last. पर पहले मैं चाहूंगी ये मैं आपको अभी तक मैंने आपको नहीं, ये लर्निंग आउटकम्स ही एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है।
पर इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताना चाहती हूँ। तो अभी ये आप रखो साइड में। तो कोई भी एक लेसन आप सोच लो, और आप अभी देखिए ये वाला लेसन था इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले तो लंग्स के बारे में और ये सब मैंने ऐसे ही लिखा कि थोरैक्स और ये वो, और मेरी जो वोकैबुलरी थी तो ये सारे डिफिकल्ट वर्ड्स थे उसमें, तो वो मैंने लिख लिए। और प्रायर नॉलेज क्या होगा कि बच्चों को सिस्टम्स मालूम है कि हमारी बॉडी में ये 10 सिस्टम है और ये 10 सिस्टम हमको हेल्प करते हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में मैं अभी सिखाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने नाक, मुंह, फेरिंग्स, लैरिंग्स ये सब बच्चों को पूछा कि और ये किया। और ये जो क्वेश्चंस है कि ये क्वेश्चंस मैं रेडी रखूंगी कि बच्चों को पहले पूछूं कि एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं। तो कोई बोलेगा नाक से, तो मैं पूछूंगी हर एनिमल वैसे ब्रीथ करता है क्या? फिर ब्रीदिंग साइकिल का मतलब क्या है? अगर हम ब्रेथ लेना है तो लेते ही रहेंगे तो क्या होगा? अगर हम उसको छोड़ेंगे नहीं हमारे श्वास को, तो what would happen? तो ये सब all these are the things which you have to write down in advance के these are the essential questions के at the end of the chapter this is there। और ये मटेरियल में मैंने ये सारा कुछ किया, उनको एक स्टॉप वॉच दिया कि 1 मिनट में आप कितने सांस लेते हो वो रिकॉर्ड करो। फिर एक पेपर दिया उनको, रिकॉर्डिंग शीट दिया उनको, बहुत सारी चीजें जो मैं करना चाहती हूँ वो मैंने सारे लिख लिए। और एक दो वीडियो भी मैंने डाउनलोड किया। अब इसमें क्या है कि मैं अब डिसाइड करूंगी कि ये मैंने करूंगी। तो जैसे इन्होंने कहा कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, अब ये होता है पहला पार्ट। सब कुछ स्टार्ट करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपने टॉपिक यहाँ तो लिख लिया और ये सब आप ये करने वाले हो, पर इसके बाद ये बच्चा सीखने वाला क्या है? तो अगर मैं बोलूं कि बच्चा सीखेगा, समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, लर्न करेगा, दैट इज नॉट एम एंड ऑब्जेक्टिव। एम एंड ऑब्जेक्टिव हमेशा कैसे होना चाहिए? कैन एनीवन टेल मी? आपको ये मालूम है? प्लीज टेल मी। स्पेसिफिक होने चाहिए मैम। या व्हाट इज दैट वर्ड? क्या वर्ड है? Specific. नहीं, Very और कौन है specific. ये? रूपाली या रूपाली। पर वो वर्ड क्या है? SMART। SMART का मतलब क्या है? Smart. स्मार्ट। अभी एस में स्पेसिफिक है, यानी स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चाइल्ड हैज लर्नड अबाउट रेस्पिरेशन। अभी लर्न आप उसको मेजर नहीं कर, एम इज मेजरेबल, यानी अगर उसने लर्न किया है तो अगर वो बोलेगा कि मैम मैं 1 मिनट में इतने टाइम मैं सांस लेता हूँ, तो अगर वो आपने उसको वो दिया, टेबल वगैरह दिया, तो वो पता चलेगा कि बच्चे को कि ये है, तो वो मेजर करेगा। तो दिस इज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अभी मुझे बताइए कि आप लोग में से किसको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मालूम नहीं है? Anyone who doesn't know Bloom's taxonomy? Bloom's taxonomy, अगर मैं बोलूंगी कि मैं आपको एक 100 पेज का बुक देती हूँ कि हाउ टू स्विम, और मैं आपको दे दूंगी वो बुक और बोलूंगी कि ये 15 दिन आप उसको पढ़ो और 15 दिन के बाद मुझे स्विमिंग पूल पे मिलो, और उस स्विमिंग पूल पे मैं आपको लेके जाऊंगी और मैं बोलूंगी मैंने तो तुमको बोला था ना सीख के आना, अब तुम जाके उसमें छलांग लगाओ। अब क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी? डूब जाएगा। हाँ, क्यों? He doesn't have the No, sir, practice. real experience नहीं है। Realistic. So learn is not a objective. Understand is not a objective. Know is not a objective. ये 3 words बिल्कुल काट दो। Learn, know and understand. इन 3 words को कहीं भी नहीं यूज करोगे। प्लीज लिख लो
कि बच्चा नो लर्न एंड अंडरस्टैंड कभी नहीं करेगा। अगर वो एक्सप्लेन करता है कि ब्रीदिंग क्या है, इसका मतलब है आप उसको, वो बोल रहा है, आप उसको सुन रहे हो। अगर वो हाथ पैर मारता है पानी में, तो उसको एटलीस्ट फ्लोट करना आता है, वो फ्लोट करता है। ही हैज गॉन फ्रॉम वन स्टेज, फ्रॉम डूबने से फ्लोट करने तक वो पहुंच गया है। अब उसके बाद वो क्या करेगा, स्विम करेगा, फ्लोट करेगा, मूव करेगा, फिर वो बाद में वो अच्छी तरह से स्विम करेगा, बाद में वो अलग अलग ये करेगा, बाद में वो डाइव करेगा। ये सब बाद में आएगा, दैट इज हायर लेवल थिंकिंग। पर अगर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में अगर आप देखो कि 6 लेवल्स होते हैं, और उसमें से जो लोअर लेवल होता है वो अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और एप्लीकेशन होता है। पर अगर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी है, पर आप जब ऑब्जेक्टिव लिखोगे तो ये वर्ड्स नहीं यूज करोगे। आपको कैसे मालूम है कि वो अंडरस्टैंड किया है? क्योंकि वो एक्सप्लेन करेगा, वो कंपेयर करेगा, वो जस्टिफाई करेगा, वो ही विल डिस्क्राइब, ही विल रिलेट, ये सब वो करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? एनी डाउट यू कैन पुट इट अप। कोई भी डाउट हो? Lakshmi, can you read? Hello, ma'am. Hello, ma'am. Yeah, please. Yeah. Yes. I think a student should go through experience. Yeah. So I will come to it. Who is this? Okay. Arun? Is that Arun? Abhijit Kulkarni. Abhijit. Abhijit Kulkarni. Yes, Abhijit. Yeah. So you're correct. So experience, application, ये सब ये, पर आप जब ऑब्जेक्टिव्स लिखते हो तो आपको परफेक्टली बोलना है। ये आप नहीं बोल सकते कि अप्लाई द नॉलेज, आपको ये बोलना है कि एक्सपीरियंस, यानी आज बच्चे ने हाथ पैर मारे और उसने पकड़ के उसने फ्लोट किया, पर वो छोड़ के नहीं किया। तो बिल्कुल हाँ, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किसी ने डाला है, वृंदा ने डाला है, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट। ठीक है। तो बट इसमें क्या है कि ये टैक्सोनॉमी है, पर आप उसको जब स्मार्ट बनाते हो तो आपको एग्जैक्टली कहना है कि उसने एक्सप्लेन किया, या उसने लेबल किया पार्ट, या उसने गाना गाया, यानी जो उसने किया है वो आपको बताना है। स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, टाइमली। तो ये 5 होने चाहिए। आप उसको नहीं बोल सकते कि बच्चे को तो समझ में आया और मुझे मालूम है कि बच्चा सीख गया। उसको समझ में आया, ये आपको क्या, आप उसके दिमाग के अंदर गए थे समझने के लिए? नहीं, आप नहीं कर सकते हो। या करेक्ट। तो जब तक बच्चा नहीं दिखाएगा कि उसको कैसे समझा है, तब तक तो आप कोई जादूगर नहीं हो कि आप उसको समझे कि उसको कैसे समझ में आया। ओके ओके, सो नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट। वी हैव हाफ एन आवर मोर, तो जितना जल्दी हो सके आई वांट टू कंप्लीट इट। तो ये तो आपको मालूम है, और इसको कहते हैं ब्लूम्स वर्ब्स। वर्ब्स यानी क्रिया। वर्ब मीन्स क्रिया। अब क्रिया में इसको मैं आपको मराठी में आपका दिखाती हूँ। अरे सॉरी Ma'am, please Ma'am, earlier please slide. share first screen that it's written there, Bloom's taxonomy. हाँ, yes. हाँ, तो इसमें क्या है कि जो क्रिया है वो लिखे हुए हैं। जैसे अरेंज, यानी बच्चे ने ये टेबल्स अरेंज किए, 13 का टेबल्स आप उसको जंबल करके दे दो और उसने सही उसको डाला। 13 1s are 13, 13 2s are 26। या फिर आप बच्चों को उसका बैच दे दो, 30, एक बच्चे को 13 का बैच दे दो, एक बच्चे को 26 का बैच दे दो, एक बच्चे को, और उसको उनको बोलो कि
जो 13 के टेबल है वो लाइन में खड़े हो जाओ। तो अब ये क्या कह रहा है, बच्चे सारे अरेंज हो रहे हैं उस लाइन में। तो जब वो अरेंज होते हैं तो वो सीखते हैं, और कितने अच्छी तरह से वो सीखते हैं। आपने वो एक्टिविटी 2 मिनट के लिए किया, पर इट इज, या फिर सारे नंबर्स आप उनको जंबल दे दो 13 के टेबल्स के साथ, 12 के भी दे दो, कोई 15 की भी दे दो, और उनको बोलो इसमें से आप छांटो कि 13 के टेबल कौन से हैं। तो इसमें आइडेंटिफाई होता है और सेपरेट होता है, ये सब होता है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो एनालाइज, इवैल्यूएट, इसको हायर ऑर्डर थिंकिंग बोलते हैं। सॉल्विंग एंड ऑल इज लोअर ऑर्डर थिंकिंग। आपने 10 नहीं 100 सम दिए और 100 सम भी बच्चे ने सॉल्व किए, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कल जाके बच्चा उसको ठीक से करेगा, और कहीं भी अगर उसको यूज होगा तो वो, जब तक के आपने उसको सॉल्व करने का कौन सा तरीका दिखाया, आपने उसको गेम खिलाया क्या, आपने उसको कोई एक्टिविटी दी क्या, आपने उसको कोई क्योंकि देखिए हमारे पास जो चीजें आती है वो कान की तरह से आती है, आंखों की तरह से, 5 सेंस ऑर्गन जो है, और हम हमेशा कान और आंख का ही सहारा लेते हैं, हाथ का या यानी टंग का या स्किन का नहीं सहारा लेते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि बच्चा ये नहीं, ही इज नॉट एबल टू। अब ये जो एनालाइज, इवैल्यूएट क्या होता है, वो हायर ऑर्डर थिंकिंग है। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं बैंगलोर में रहती हूँ, यहाँ एक स्कूल है और यहाँ स्कूल में एक टीचर की जरूरत है, और यहाँ आपको 1 लाख की सैलरी मिलेगी, तो कौन वो बेवकूफ होगा कि बोलेगा कि नहीं मैं आ रही हूँ। 1 मिनट में क्या तुम डिसीजन लोगे? आर इन स्मार्ट इज आर रियलिस्टिक स्मार्ट आर। सारिका, यू गॉट इट? अगर मैं आपको बोलूं 1 लाख का सैलरी है, तो आप उसको तुरंत हाँ मैम मैं आ रहा हूँ ऐसे बोलोगे? आ रही हूँ ऐसे बोलोगे? No, नहीं। ma'am. तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे उसको? We will think about it, ma'am, with all the थिंक का way. मतलब क्या है लक्ष्मी? थिंक का मतलब क्या है? यू आर राइट लक्ष्मी, थिंक का मतलब क्या है? Realistic. Find Is out it the try to really find out the possible? Lakshmi, one by one, please raise your hand. Yeah, Lakshmi. Really, is it possible? The in all the manners, I will think, ma'am, कि सच में ये मेरे लिए पॉसिबल है क्या? जितने फायदे हाँ, हैं, correct. नुकसान भी है इसके क्या? हाँ, yes, perfect. हूँ। और जानकारी लेंगे, दीपिका कह रही है जानकारी लेंगे। लेंगे। वेरी गुड। सुहारा कह रही है क्रिटिकल थिंकिंग। और ये सब अभी छोटी सी चीज जैसे क्या खाना चाहते हो से लेके कौन सा किसको वोट देना चाहते हो उसके लिए भी आप एनालाइज करते हो, इवैल्यूएट करते हो। जब तक कि एनालाइज और इवैल्यूएट नहीं करोगे तब तक आप जाके वोट नहीं दोगे। ऑफ कोर्स अनएजुकेटेड लोग तो 1000 रुपए और 2000 का नोट लेके बिना सोचे भी जाके देते हैं, बट दैट इज अ लोअर ऑर्डर थिंकिंग। उसमें वो दिमाग नहीं यूज करते, पर इसके लिए वो उसी। या भारती wants to ask something. Yeah, Bharati, please tell me. Yeah, Bharati, please unmute. Okay. भारती प्लीज लोवर योर हैंड, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए अनम्यूट करके, नहीं तो आप अपना हाथ लोवर कर सकते हो। ठीक है, यहां तक आपको पता चला? Yes, ma'am. ओके ओके। तो ये जब आप ये जो आप आपने कहा कि आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखना चाहते हो, उसको मैं लर्निंग आउटकम्स लिखती हूँ। आपको लिखना है तो ऑब्जेक्टिव्स भी लिख सकते हो, पर आपको उसको स्टार्ट करना है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द लेसन लर्नर्स विल बी एबल टू। यानी आज मैंने 45 मिनट्स का लेसन कंप्लीट किया,
तो उसके बाद लर्नर एक्सप्लेन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये एक्सप्लेन तो बहुत लोअर ऑर्डर थिंकिंग है, डिफरेंशिएट इज अगेन हायर ऑर्डर थिंकिंग कि मैं मैम का जॉब ले लूं या यहीं रहूं, यहाँ तो मेरे फ्रेंड्स भी है, यहाँ मेरी फैमिली है, वहां जाऊंगी तो अकेली पड़ जाऊंगी, वहां जाऊंगी तो ये होगा, मुझे रेंट देना पड़ेगा, ये होगा, यहाँ तो मेरा ओन घर है, वहां तो मुझे भाड़ा देना। ये सब जो आप उसको कंपेयर करके ये करते हो और उसको डिफरेंशिएट करते हो, फिर जस्टिफाई करते हो, फिर उसको डिस्क्राइब करते हो। डिस्क्राइब इज अगेंस्ट लोअर ऑर्डर थिंकिंग, और रिलेट करते हो, वो सब हायर ऑर्डर है। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? Yes, ma'am. और एक चीज आपको याद रखनी है कि जैसे मैंने कहा, हमारे बॉडी में 3 ऐसी चीजें हैं जो H से स्टार्ट होती है, आपका हेड, हार्ट और हैंड। और हेड, हार्ट और हैंड का मतलब ये है कि आप दिमाग से सोचोगे तो वो नो एंड अंडरस्टैंड होगा, आप हार्ट से सोचोगे तो आप उसका वैल्यू फील करोगे, और हैंड से करोगे तो आप उसको करोगे। तो अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो उसमें ये तीनों चीजें आनी चाहिए। कि बच्चा अगर समझो पेपर भी काट रहा है तो आप उसको बताओगे कि आपको ये पेपर बुक में से नहीं फाड़ना है, मैं आपको न्यूज़पेपर लाई हूँ और ये न्यूज़पेपर आप यूज करोगे, और आप उसको गंदा नहीं करोगे। तो जो आप उसको एक्टिविटी करा रहे हो उसमें थोड़ा सा हार्ट भी लाओ। हार्ट लाने से बच्चा क्या होता है कि ये करेगा कि हाँ ये पेपर है, और इसको खत्म होने के बाद कचरा डब्बा में डालना है। अगर वो छोटे छोटे पीसेस है, अगर बड़ा पीस है तो उसको साइड में रख के फिर आप उसको यूज करोगे अगला आपका कोई भी जो एक्टिविटी है उसके लिए। ठीक है? Please, please mute yourself, please. I can hear someone talking. Hello. Mute करो please. अच्छा, अब ओपनिंग हुक तो ये मैंने आपको बता दिया, पर ओपनिंग हुक में आपका कुछ नहीं है। आपका ये फर्स्ट पेज होने के बाद आपको सिर्फ 5 चीजें रखनी है कि आप उसको, जो फर्स्ट 1 and 2 जो है वो फिक्स रहेगा, 7 and 8 जो है वो फिक्स रहेगा, जो थर्ड है वो हमेशा चेंज होगा। और इसका आप कभी कभी 6 भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 भी कर सकते हो एक दिन में, पर 8 चीजें एक दिन में मत करो। ओपनिंग हुक के लिए 3 मिनट काफी है। अगर आप मैं क्या करती थी कि अगर मैं फ्रैक्शन सिखाती थी तो बच्चों को बोलती थी कि पेपर, ये छोटा सा पेपर देती थी और मैं ऐसे उसको फाड़ती थी जैसे भी उल्टा सुल्टा, और मैं उसको बोलती थी अब बताओ कि इसको अगर 10 लोगों को बांटना है कि सबको इक्वल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बच्चे बोलेंगे नहीं मिलेगा मैम, तो आप उसको कैसे काटोगे? तो बच्चे बोलेंगे ऐसे फोल्ड करो, ऐसे फोल्ड करो। तो टीचर क्या बोलती है, बच्चे क्या करते हैं, और उसमें से 3 जो क्वेश्चंस है बस आपको लिखने हैं, और ये 3 मिनट काफी है। ओके? उसके बाद जो है ओपन हुक में कुछ भी हो सकता है। बेसिकली आपका रीजन क्या है ओपन हुक के लिए, कि आप उनको अटका रहे हो, आपके पढ़ाई, आप जो पढ़ाने वाले हो उसमें हुक कर रहे हो, और आप उसको रेडी कर रहे हो पढ़ने के लिए, और आप उसका प्रीवियस नॉलेज जो है वो टेस्ट कर रहे हो। और इसके लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो ओपन हुक। आप उनको कहानी ये कर सकते हो, गाना गा सकते हो, आप उनको न्यूज़पेपर आर्टिकल, अगर आप एनवायरनमेंट पे कुछ करना चाहते हो तो ओपनिंग हुक आप उसको न्यूज़पेपर आर्टिकल कर सकते हो, आप एजुकेशनल वीडियोस बता सकते हो, आप उसको उसकी कहानी बता। ये आपको बाथटब में है, वो क्या है, किसी को मालूम है ये क्या है? हेलो, कोई बता सकता है? The scientist. हाँ हाँ, कौन सा साइंटिस्ट है वो? Eureka. यूरेका, आइंस्टाइन, करेक्ट। या फिर आप उसको बोल सकते हो अच्छा आज हम कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे, और एक क्विज ले लो। 2-3 मिनट का क्विज काफी है। बच्चे क्या होंगे, तुरंत बोलेंगे अरे वाह आज तो बहुत मजा आया। घर में जाके भी बोलेंगे यू नो मैम ने आज हमको बहुत मजेदार एक कहानी सुनाई।
कभी कभी मैं ये कौवे की कहानी भी सुनाती हूँ बच्चों को, जब बॉयंसी और ये सिंकिंग और फ्लोटिंग के बारे में बताती हूँ, तो मैं बोलती हूँ कि अगर पत्थर नहीं होता तो क्या कौवा क्या डाल सकता था, अगर वो पत्ते डालता तो क्या पानी ऊपर आता। ऐसे मैं सब ये ना कहानी बता के वो करती हूँ। पिक्चर रीडिंग कर सकते हो, वीडियो दिखा सकते हो, गाना गा सकते हो। जैसे बारिश के बारे में गाना है तो आप एक ये रे पाउसा करके वो गाना गाओ, एंजॉय करो, बस एंजॉय, दैट्स ऑल। इज दैट क्लियर? या फिर कोई गेम खिलाओ बच्चों को। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. अब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इसमें क्या Yes, है, ma'am. इसमें जितना कम टाइम हो उतना अच्छा है। इसमें आप एक्सप्लेन कर रहे हो एंड आप उसको उनको बिल्कुल बहुत टाइम नहीं लगाना है, पर जो क्लास का टाइम है उसमें से 45 मिनट्स में से 10 मिनट अगर इसमें डालते हो आप, तो आप उनको बोल सकते हो कि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में ये यूनिट फ्रैक्शन है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, या कुछ भी आप सिखा रहे हो। तो कभी कभी ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बाद में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। इसका ऑलवेज ये नहीं है कि सेकेंड ही आना चाहिए। कभी कभी आप एक्टिविटी पहले कर सकते हो, ये वाला आप पहले कर सकते हो, ये वाला आप पहले कर सकते हो। मैं दिखाऊंगी कौन सा पहले कर सकते हो। एनीवे, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में आप लेक्चर दे सकते हो, आप ये कर सकते हो, और कभी कभी आप उनको 2-2 या 4-4 को इकट्ठा बिठा के भी आप उनको ये करो, और अपने आप या कोच कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट दिखा सकते हो, सब। अब डायरेक्ट इसमें क्या होता है कि कभी कभी आप ग्रुप वर्क भी करा सकते हो और उसमें भी बच्चों को बता सकते हो। आप पेयर करा सकते हो, बच्चों को कोई प्रॉब्लम दे सकते हो, कोई डे टू डे प्रॉब्लम दे सकते हो, या कुछ भी कर सकते हो आप। और गाइडेड एंड इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ये दोनों ऑलमोस्ट ओवरलैप होते हैं। कभी कभी आप उसको आप दिखा के बच्चे आई डू यू वॉच या फिर वी डू भी करा सकते हो, ठीक है। और अब है कि आपको बच्चे को समझ में आया, ये पता चलने के लिए आप बच्चे को एसेस करोगे। तो हर बार एसेस करने के लिए क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर की जरूरत नहीं है। बच्चे किसी भी तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कभी कभी बच्चे क्या होता है कि बच्चे आके ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक माइंड मैप ड्रॉ करेंगे, कभी ऐसे कुछ लिखेंगे नोट्स, या कभी कभी ओरल प्रेजेंटेशन देंगे। बच्चों के कोई भी तरीका, कभी गाना बनाएंगे, कभी ड्रामा करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। बच्चों को आप बोलो कि आप करो जो आपको, पर मुझे एट द एंड आज मैंने जो पढ़ाया है वो कल है कि आपने। सो असेसमेंट विल बी द सेम वे कि ये जो एक्सप्लेनेशन है यही असेसमेंट है बच्चों का। हर बार आपको ये नहीं, कभी कभी आप गेम से भी असेस कर सकते हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, 2+2, तो आंसर यू हैव टू क्लैप, तो बच्चे 4 बार क्लैप करेंगे ऐसे, ठीक है। एंड देन लास्ट इज असेसमेंट। इसके बहुत सारे तरीके हैं, अभी आई हैव नो टाइम फॉर दैट। अनदर थिंग इज फॉलो अप। अब फॉलो अप का मतलब क्या है कि अब टीचर एंड में क्या करेगी, क्लास खत्म होने के, ये क्लास में नहीं होगा, फॉलो अप क्लास में नहीं होगा। तो फॉलो अप उस दिन जो आपको असेसमेंट आपने किया है उसको लेके आप जाओगे और आप उसको देखोगे, आज इतने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, इतने बच्चों ने रॉन्ग आंसर दिया। होम असाइनमेंट एंड ऑल दैट कैन कम इन असेसमेंट ऑल्सो, कि आप उनको होम असाइनमेंट दे दो और दूसरे दिन उसी दिन करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। होम असाइनमेंट कैन कम, या एक वीडियो बनाओ बोल सकते हो। अगर आप एनवायरनमेंट के लिए ये करो तो बोल सकते हो एक छोटा सा वीडियो बनाओ कि आपके घर के पास कहाँ कहाँ सफाई है और कहाँ कहाँ गंदगी है।
इसका एक वीडियो बनाओ, प्रोजेक्ट वर्क, यस करेक्ट, यू कैन गिव प्रोजेक्ट वर्क, कुछ भी कर सकते हो। पर ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, ये क्लास के बाहर होगा, जैसे लेसन प्लान क्लास के बाहर होता है, ये लेसन खत्म होने के बाद आपको देखना है कि अरे आज तो बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं पता चली, क्या मैंने उसको ठीक से पढ़ाया, क्या मेरे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम है या बच्चों के अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। तो जब आप ये कर सकते हो तो आप उनसे दूसरे दिन जाके पूछ सकते हो कि कल मैंने ये पढ़ाया था पर आपने ये आंसर लिखा, आपने क्यों लिखा। तो दूसरे दिन जो आपका जो पहला 5 मिनट है उसमें आप उसको एक गेम की तरह बना के आप उनको पूछ सकते हो। जरूरी नहीं कि आप हर एक बच्चे को पॉइंट आउट करिए, तुमने गलती की, तुमने गलती की। आपको पता है कि कितने बच्चों ने गलती की, तो आप उसको अलग तरीके से उसको पूछ के बता सकते हो। और तो आपका जो असेसमेंट होगा वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, हर एक मिनट के बाद, हर टॉपिक के बाद होना चाहिए। इट इज फॉर लर्निंग, नॉट ऑफ लर्निंग। आप कोई बच्चों का ये नहीं ले रहे हो, क्लास नहीं ले रहे हो, अरे बताओ नहीं तो मैं मारूंगी, ऐसे नहीं, फॉर लर्निंग, क्योंकि वो सीख रहा है। तो अगर वो हाथ पैर नहीं मारेगा आज, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्विमिंग नहीं सीख सकता है, वो कल भी लर्न कर सकता है। आज वो कम मारेगा, आज उसके पैर दर्द होंगे, उसके मसल स्टिफ हैं, इसलिए वो नहीं मार रहा है, तो कल से वो मार सकता है। एंड उसका प्रोग्रेस देखने के लिए, एंड हमेशा असेसमेंट एंड में नहीं होना चाहिए, कभी भी हो सकता है, एंड कभी भी पेपर पेन नहीं होना चाहिए असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और तीनों होने चाहिए उसमें, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। आपको मैंने बताया था कि नॉलेज एंड स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एटीट्यूड, जो जेफ बेजोस और इनके में एटीट्यूड था, जब अंबानी पेट्रोल पंप में था, उसको उसके बॉस ने प्रमोशन दिया था, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए आपका प्रमोशन, मैं तो पेट्रोल रिफाइनरी खरीदूंगा, एंड उसने काम छोड़ दिया था। और कभी कभी आप देखने से भी असेस कर सकते हो, रूब्रिक्स बना सकते हो कि अगर मैं ये पढ़ाऊंगी तो ये चीजें बच्चों को आनी चाहिए, तो आप एक चेकलिस्ट, अच्छा ये शिव है तो शिव ने ये चीज किया, ये नहीं कर सका, तो ऐसे। एंड योर ओन इफेक्टिवनेस, एक तो आपने कैसे पढ़ाया, एंड वो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, वो आपने ठीक किया या नहीं। और रैप अप भी है, वो रैप अप होता है कि आप उस पीरियड के लास्ट 3 मिनट या 4 मिनट जो आपने मेन पॉइंट्स पढ़ाए हैं उसको रैप अप कर सकते हो, ठीक है। और उसमें कभी कभी आप उसको बोल सकते हो कि कल मम्मी से पूछना, अगर आप फूड के बारे में कुछ बता रहे हो तो कल मम्मी से पूछना कि खाने में क्या है, और दाल है, चावल है, ये है, तो दाल में क्या है मम्मी, प्रोटीन है या क्या है, चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो ये एक्सटेंडेड अंडरस्टैंडिंग या एप्लीकेशन इन अ न्यू सिचुएशन या एवरीडे लाइफ एप्लीकेशन, ये सब होता है। एंड और सेल्फ इवैल्यूएशन, यानी ये आपको अपने आप के लिए पूछना है कि क्या मैंने ठीक से किया या नहीं किया। सो दैट्स ऑल फॉर लेसन प्लानिंग। अभी we have 5 minutes, कोई क्वेश्चन हो तो आप बता दीजिए। आपको अगर कुछ बोलना है तो प्लीज बोलिए। यस, हेलो मैम, मैं भारती, या माय नेम इज भारती। मैम मुझे थोड़ा वैल्यू वैल्यू जो मूल्य बोलते हैं हम, जीवन मूल्य, थोड़ा उसके बारे में एक लिटिल उसके बारे में। तो अभी मैंने आपको हाँ बताया, मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ। ओके, हाँ और मैंने बच्चों को पेपर से काम करने के लिए बोला, और बच्चे नोटबुक में से पेपर फाड़ रहे हैं। उससे पहले आपको बोलना है कि आज हम लोग पेपर यूज करेंगे, पर ये जो पेपर यूज करेंगे उसको वेस्ट नहीं करना है, उसको संभाल के रखना है, क्योंकि ये पेपर इस प्लांट, और हम प्लांट काटते हैं,
अगर हम वेस्ट करते हैं तो ये, और यही पेपर आपको अगर आपके घर में ये पेपर लिखने वाला पेपर जो है, तो आप एवरी ईयर उसके पीछे वाले पेजेस निकाल के आप उसको, हम लोग छोटे थे तो हम बाइंड भी करते थे, पर आप उसको रफ वर्क के लिए, मैथ्स प्रैक्टिस के लिए यूज करो। तो वैल्यू क्या है कि पढ़ाते पढ़ाते हिस्ट्री में आपने किसी वैल्यू के बारे में बोला और वॉर के बारे में बोला, तो उस समय आप उसको बोल सकते हो कि देखियो वॉर होने से कितना नुकसान होता है। हमेशा यही मत सोचो कि आज मुझे ये किसी भी हालत में लेसन खत्म करना है, और बच्चे भले ही उसको कैसे भी लो, आप उसको पूछो कि कैसे आप उसको, अभी इन्होंने वॉर किया था उस टाइम, तो उसके वजह से आप कभी कभी हिस्टोरिकल प्लेसेस को जाते हो, कितने टूटे फूटे टेम्पल्स हैं, मॉस्क है, चर्चेस हैं, ये सब ये है, तो कैसे आप उसको ये करते हो कि लोगों ने वो वॉर करके कैसे इतना नुकसान पहुंचाया, तो वो सब आप उसको, इसी को वैल्यू कहते हैं। आप जो पढ़ा रहे हो उसी में एक वैल्यू निकालो, कोई भी एक वैल्यू। ऑनेस्टी, आप पैसे के बारे में ये कर रहे हो तो ऑनेस्टी के बारे में, मनी के बारे में ये कर रहे हो तो आपको ये पैसे, अगर ये है शॉपकीपर ने इतना पूछा तो वो क्या करेगा, वो आपको वापस करेगा पैसे। अगर उसने नहीं किया तो ऑनेस्टी, आप अगर होते तो आप क्या करते। ऐसे एक या दो सेंटेंस 30 सेकंड से 1 मिनट आप बच्चों को उसके बारे में बात कर सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन भारती, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और बहुत ही now I write that is a lesson plan, so या मैंने ही जैसे एक जस्ट मैम आपको जैसे एक बता देती हूँ, जैसे आपने बताया तो बलिदान एक कविता है, तो मैंने एक वहाँ पे जीवन मूल्य ऐसे डाला है कि नाउ दिस सिचुएशन हाउ टू हैंडल, मीन्स जो भी अभी अड़चनी या आपको जो आएंगे सिचुएशंस आएंगे तो आप उसको फेस कैसे करेंगे। उस टाइम जो स्वराज्य स्वातंत्र वीरों ने वैसा काम किया, उन्होंने वैसे फेस किया, तो अभी आपके सामने कोई अड़चने आती है तो आप कैसे करेंगे, जैसे आपने बताया, तो उस टाइप से मैंने इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन जस्ट मैंने एक कंफर्म आपसे पूछी। नहीं, आप परफेक्ट भारती, आप जो बोल रहे हो वो 100% लैंग्वेजेस और हिस्ट्री सिविक्स और इसमें तो बहुत चांस है, पर कभी कभी आप मैथ्स और साइंस में भी आप उसको डाल सकते हो, किसी में भी आप डाल सकते हो कि आप उसको बच्चे को वैल्यू बता रहे हो कि ये क्योंकि देखिए जो कुछ भी होने दो, आपका जो एटीट्यूड है वो आपका जो बिहेवियर है, आप किसी लोगों को आप अच्छे क्यों लगते हो, आप बुरे क्यों लगते हो, कोई आपको हेट क्यों करता है, क्योंकि आपका वैल्यू और उसका वैल्यू सेम नहीं होगा। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग आपको पसंद करें, पर जो चीजें हैं, जो वैल्यू है, और आपको कभी नहीं बताना है कि हमेशा ऑनेस्टी ही चलेगी, ऐसे कहीं नहीं बताना है। बच्चे को चूज करना है कि आज मुझे, अगर मैं ऑनेस्टी से मुझे नुकसान होता है पर किसी और को फायदा होता है कि मैं डिसऑनेस्ट बनूं। जैसे आप देखते हो कि कभी कभी घर में कोई चीज नहीं रहती है और माँ कहती है कि पैसे नहीं है, ये ऑनेस्टी हो गई। कभी कभी वो डिसऑनेस्ट होती है कि सही चीज बताती नहीं है पर बच्चे को अंडरस्टैंड कराती है, तो दैट कैन, तभी आप डिसऑनेस्ट होते हो, पर उसमें ज्यादा फायदा है क्योंकि आप बच्चे को कोई और वैल्यू दे रहे हो। तो दैट इज वैल्यू। वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि मैं जो सोचती हूँ वो बच्चों को, ऑनेस्टी, मैं ट्रुथफुल हूँ तो बच्चे भी ट्रुथफुल ही होने चाहिए। कभी कभी वैल्यू के कॉम्प्रोमाइज भी कैसे होते हैं वो भी आप बच्चे को बता सकते हो। पर इफ यू कॉम्प्रोमाइज ट्रुथ ऑल द टाइम, फिर आपको लोग समझेंगे कि आप लायर ही हो, आप कभी आप पे भरोसा नहीं करेंगे। पर कभी आप एक बार, आई कैन नॉट टेल लाई, और मैं झूठ बोलती हूँ तो मेरे मुंह पे दिख जाता है। तो मेरी बेटी एक दो बार मुझे बोली कि मम्मी तुम मत बोलो, तुमको बिल्कुल ही नहीं मैनेज, यू कैन नॉट मैनेज इट, ऐसे मुझे बोली। तो इट्स बिकॉज मैं कभी कभी आई यूज द ट्रुथ मोर देन माई बेनिफिट, कि मुझे इससे प्रमोशन होगा या मुझे इससे पैसे का फायदा होगा, मैं उसको नहीं देखती हूँ। तो इट्स दैट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदरता से आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू।
Any And other ma'am, एक question? जो question स्लाइड है, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ हाँ पीपीटी के जो लास्ट के 3-4 स्लाइड्स है, क्या आप फिर से दिखा सकते हैं? स्क्रीनशॉट जी, लेने जी। हैं उसके, क्योंकि हम जी, फॉर्म जी। भर रहे थे ना। जी जी जी। थैंक यू मैम। कौन से लास्ट स्लाइड? ये इसके आगे First और slide. आगे, और आगे मैम। starting with, I think. यस यस, एक ये मिनट। वाला? यस मैम, इसके Ma'am, आगे मैम। sorry. इसके आगे का मैम और, अच्छा, असेसमेंट एंड आफ्टर दैट 8 नंबर स्टेज है ना? हाँ, असेसमेंट टीचर क्या करेगी, बच्चे क्या करेंगे, और 3 क्वेश्चन जो टीचर पूछेगी, यानी टीचर उनको फूल देगी और बच्चे उसको डाइसेक्ट करेंगे, और डाइसेक्ट करने के बाद टीचर पूछेगी कि इसमें देखो पत्ते कितने हैं, इसमें देखो ये कितने हैं, ये कितने हैं। तो जो भी असेसमेंट आप यूज करें उसमें क्वेश्चंस क्या पूछोगे वो आपको लिखने हैं। यस यस। और फॉलो अप यानी ये घर जाने के बाद रैप अप और फॉलो अप में फर्क है। ये रैप अप लेसन प्लान में आप डाल सकते हो, पर फॉलो अप डाल सकते हो, पर रैप अप डालना बहुत जरूरी है। रैप अप का मतलब ये है कि आप उसको एंड कैसे करोगे, एक क्विज से करोगे या फिर कैसे करोगे। हर बार उनको क्वेश्चन पूछते जाओगे और तो मजा नहीं आएगा। कभी कभी आप कौन बनेगा करोड़पति खेलो, कभी कभी आप उनको बोलो क्लैप करो, कभी आप उनको पूछो कि यानी क्या सीखा आपने, एक आके यहाँ माइम करो कि आपने क्या सीखा, दूसरे लोग ये करेंगे, तो वैसे भी हो सकता है। यस यस मैम, थैंक यू सो मच मैम, इट वाज वेरी वंडरफुल सेशन मैम। थैंक यू सो मच। इट्स वाज माय प्लेजर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने लास्ट टाइम भी 2-3 महाराष्ट्र में स्कूल्स के लिए किया था फ्रॉम रोटरी क्लब, और वो मुझे बहुत एंजॉय हुआ, क्योंकि हम जो ये बड़े बड़े स्कूल्स में जाते हैं वहां तो दे हैव द प्रोविजन, पर कभी कभी ये जो अंदर अंदर के जो स्कूल्स हैं वहां तक पहुंचने के लिए हम, और आप जो काम कर रहे हो ऐसे बच्चों को आप सिखा रहे हो, तो हमारा ये छोटा सा योगदान है। एंड आई एम सो प्लीज एंड थैंक यू सो मच टू दलवी फाउंडेशन फॉर दैट। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Any other teachers? Anyone? काही और किसी प्रश्न को कुछ आहेत? क्वेश्चन? या सोनाली वांट्स टू आस्क। या सोनाली? Thank you. No, I don't want to ask. I want to thank you, SRDalvi Foundation and Teacher Talk app. This was like a recap of a B.Ed what we did at the right time, on the right track. When Yeah, actual thank you. physical students will come, we have to implement all these things. And I would say, rather, wrap up of this session, that a perfect dish you provided us with perfect planned ingredients, then definitely the recipe will be fine. Superb. Thank you, Sonali. So definitely we will implement all these things. It was just like we needed one refreshment course and you provided Yeah. us. Yeah. So really thank you for all the resource persons. In fact, those are brought Thank you. forward by Thank you. SRDalvi Foundation and Teacher Talk app. Immediately the certificate is also ready. So amazing people, amazing team. Thank you so much. Thank you so Yeah. much, ma'am. Anyone else? काही प्रश्न आहेत का? मॅम इथे क्वीज मध्ये कोणताही एकच ऑप्शन चूज करायचं आहे का? Hello. कशासाठी? सॉरी, हा मॅम. हे आपण गुगलचं हे बघतोय त्याच्यामध्ये फीडबॅक. ओके. हा हा. एनीवन ना? नाही, मला कळलं नाही. तुम्ही एकदा फक्त प्रश्न रिपीट कराल का? सॉरी, फीडबॅक जो भरतोय आपण हा हा. त्यामध्ये जे ऑप्शन्स आहेत तर त्यातला एकच कोणताही सिलेक्ट करायचा आहे की एकापेक्षा जास्त करू शकतो? नाही, करू शकता एकापेक्षा हाऊ वॉज जास्त. द ट्रेनर? एकापेक्षा जास्त कारण करू हाऊ वॉज द शकतो. ट्रेनर हो. दे ऑल द 4 ऑप्शंस Absolutely, ma'am. मैं कर सकती हूँ. नक्की, ओके, नक्की. थँक यू. Yes. Thank you for your good comments, Prabhakar, and all of you, Uma.
not Uma, who's that, previous to that also. Thank you so much. I'm glad that you have understood, and amazing to be with you all, and keep on the great work. Yes, ma'am. And I feel proud because I was born in Maharashtra. Now for past many years I'm out of Maharashtra, so I do come there very often. Once in 2-3 years I come there. My family is still there, but I now after the pandemic I have not gone. So good. Thank you so much, ma'am. I mean, indeed, as Sonali ma'am said, it was a total refresher for all of us. And now with the new concept key, wherein you've got to create engagement, you've got to have an inclusive setup, creating a lesson plan based on your children, based on the number of children that you have in your classroom is really essential today. And indeed, you've given us like with direct instruction, how do we plan and what are the steps, what is needed, because बऱ्याच वेळा असं होतं की aims, objectives आपण त्याच्यातच you keep making so many plans that there are a lot of times you just repeat the same thing for the sake of it. And that clarity is what I think all teachers today have really got through. And thank you so much from the entire Thank team, the entire foundation. Heartfelt thanks for all the support that you've extended towards the teachers of Maharashtra. And I'm sure there are other teachers from other states as well. Thank you so much. Thank Also, a small request to all the teachers. आज आता तुम्ही मॅमचे सेशन अटेंड केलेले आहात आणि नक्कीच तुम्ही फीडबॅक फॉर्म आता तुम्हाला चॅट सेक्शन मध्ये दिसतंय. लिंकवर नक्की क्लिक करा. फीडबॅक फॉर्म तुम्ही जसे तुमचे फुल नेम बरोबर तुम्ही फिल करतायत तसंच तुम्हाला तुमचे सर्टिफिकेट्स आम्ही त्याच नावाने क्रिएट करतोय. 2 ते 4 दिवसाच्या आत तुम्हाला सर्टिफिकेट टीचर टॉक ऍपवर मिळणार आहे आणि ऍपचं लिंक पण चॅट बॉक्समध्येच आहे. त्याचं पुढचं प्रोसेस की तुम्ही कसे डाउनलोड करणार आणि ते सगळे पुढचं प्रोसेस तुम्हाला व्हॉट्सअपवर अजून एक मेसेज येणारच व्हॉट्सअप आणि मेलवर. तर नक्की ते बघा. त्याशिवाय तुम्हाला काहीही डाऊट्स असतील किंवा काही इश्यूज येत असेल तर प्लीज फील फ्री टू reach out to any of us. You can either drop us a text over टीचर टॉक ऍप itself. आम्ही त्याच्यावरही अवेलेबल आहोत किंवा तुम्ही ज्या नंबरनी तुम्हाला आजचं सेशनचं झूम लिंक मिळालंय तुम्ही त्याच नंबरवर रिव्हर्ट करू शकता. तर थँक्यू सो मच टू दी एंटायर टीचर कम्युनिटी दॅट यू ऑल हॅव जॉईन्ड इन टुडे. नक्की प्लीज डू मेक यूज ऑफ दी ऍप एज वेल कारण वील हॅव ऑल ऑफ यू ऑल ऑन बोर्ड. काही तुम्ही शेअर आता नाव दॅट यू लर्न हाऊ टू क्रिएट लेसन प्लॅन्स. I think sharing of your lesson plans might be one of the, it might be a resourceful tool for another teacher who might be learning or who's not attended today's session. तर नक्कीच जमलं तर या आठवड्यात तुम्ही एक नवीन लेसन प्लॅन आज जसं मॅमनी शिकवलंय तसं बनवलं तर नक्की पोस्ट करा. Please do let everyone know of that you attended today's session and whose session you attended, and that's how you've created the lesson plan. Thank you so much to all the teachers and we hope to see you soon. Thank you so much Nirmala ma'am again for this Thank you. wonderful session. And any other topic that they would like, we can have it. Sure ma'am, sure. We will be sending out a survey form as well. तर जसे काही आम्हाला रिक्वेस्ट आले तर नक्की आम्ही तुम्हाला कळवू. हो, थँक्यू. थँक्स टू एव्हरीवन. थँक्यू सो मच. ऑल्सो जसे निर्मला मॅम सुद्धा आमचे एका वेबिनारचे पार्टिसिपेंट होते अँड दॅट्स हाऊ शी व्हॉलंटियर टू आस्क इफ शी कुड टेक दिस सेशन. इफ एनी ऑफ यू ऑल्सो थिंक दॅट तुम्ही काही सेशन घेऊ शकता आपल्या टीचरसाठी तर नक्कीच आम्हाला कळवा. विल बी मोर देन हॅपी टू हॅव यू एज अ रिसोर्स पर्सन. थँक्यू सो मच. Okay, Have a great day. bye-bye. So much. Thank you so much, Bye-bye. ma'am, for having us here. Ma'am, Thank you. We were very, the session was very Hello. informative, especially like I'm pursuing my B.Ed now, but then I got to learn so many new things. Although, it's been so many years that I'm into this teaching. Thank you so much. I think Okay, Jagdish bye-bye. sir and Abhijit sir had something to say. Yeah, please. Abhijit sir has raised his hand. And Hello. yes, sir. Yeah. Hello, ma'am. If possible, could you Yes, arrange Jagdish a session for NEP? NEP.
Okay, to understand what is NEP, sir? What is NEP for secondary school and pre-primary and primary school? Sure, sir. Sure. We'll surely make a note of it. Okay, thank you, ma'am. I'm Thank you not so an NEP expert, so I wouldn't be able to help you because I have now left school. So I'm only a teacher trainer for past Okay. 7 years, so I have no idea. But I've gone through the NEP. I've taken part in seminars and all, international seminars. But I have only worked on that's what the teaching learning strategies. My contribution was only that. So that's why yes, I your told lesson- about the NEP. I gave you a hint about the NEP. Which part of NEP you should keep in mind while making a lesson plan. Very important. Okay, see you then. Okay. Okay, okay. Great. I think Abhijit sir had to say something. Abhijit sir? He's raised his hand. Sure, I think there might be some network issue. No problem. I think then we're good to Hello, go. am I Thank you audible? so much. Yes, Am I yes, sir, you're audible? audible. Yes, sir, you're audible. हा तुम्ही असं सांगितलं की जर सेशन्स काही घ्यायचे असतील शिक्षकांसाठी तर चालेल तसं तर कोणाशी संपर्क करायचा ते सांगा. तुम्ही मला मी माझा मेल आयडी खाली मेन्शन करते. तुम्ही मला नक्कीच मेल करू शकता. येस ऑल्सो तुम्हाला ज्या नंबरनी आजचा सेशनचा लिंक आलेला आहे किंवा रजिस्ट्रेशन लिंक ज्या व्हॉट्सअप Okay. नंबरवर आलेला आहे तुम्ही त्याच नंबरवर तुम्ही रिव्हर्ट करू शकता. येस ओके थँक्यू शुअर. Thank you. थँक्यू सो मच सर. थँक्यू. बाय. Thank you. थँक्यू टू Thank ऑल द पार्टिसिपेंट्स. Excuse me, ma'am. Hello. येस येस मॅम. येस मॅम. मॅम टीचर टॉक ऍप डाउनलोड केलेला आहे पण जर तिथं हा. कंटिन्यू केलं तर तिथं पुढे आलेलं आहे की क्रिएट अ न्यू अकाउंट सेटअप युअर अकाउंट युझिंग येस म्हणजे तर तुम्हाला डायरेक्टली क्रिएट न्यू अकाउंट करावं लागेल मॅम. पूर्ण रजिस्ट्रेशन करावं लागेल. तुमचे अच्छा. डिटेल्स फिल करून आणि आणि त्यानंतर तुम्हाला जेव्हाही सर्टिफिकेट रेडी होईल ना 2 दिवसात तुम्हाला मेसेज येणार आहे व्हॉट्सअपवर की कुठे जाऊन टीचर टॉक ऍपवर तुम्ही चॅट सेक्शनला जाऊन कसं डाउनलोड करू शकता ते. अच्छा तर मला हे पूर्ण क्रिएट अ न्यू अकाउंट करावं लागेल ना. हो हो मॅम. ओके थँक्यू. Ma'am, still I'm struggling with to open that app, ma'am. Teachers Talk app. इज इट आय मीन तुम्ही डाउनलोड केलेले आहात का मॅम? हॅव यू डाउनलोडेड दी ऍप? I have downloaded, ma'am. Okay. So Still I'm unable to- instead of logging in, please just try it as create a new account or signing up. And Yeah, that's I how have then you. tried that also. Uh-huh. But still, it is not Okay. acceptable. What is the issue? So maybe I'll just do one thing, ma'am. I will personally get in touch with you. I'll ask my team to get in touch with you and we'll try to resolve the issue. Okay, ma'am. Okay, thank you so much, ma'am. Sure. You all Thank are you so much. really cooperative and always you are just taking us like हमको सुनने के लिए आप हमेशा तैयार है. That is really good, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, You ma'am. have done Means a really lot. very Thank you. excellent job. Thank you so much. Right? Yes. Anyone who wants to ask anything? अजून काय आहे? काय doubts regarding? Ma'am, in teachers talk, it's not accepting, everything is accepted. The last, I agree to the terms and conditions that I am not able to highlight it. That's why it's not going forward. Okay. That Ma'am, I everything, will yes, ask the team. everything is proper. When I entered Okay. everything that I agree to the terms and condition, I have to highlight that box, right? So if I Right, go and right. highlight, it is not getting highlighted at all. That's why it's not going forward. Okay, ma'am. You just give me again a few Sure. minutes. I will ask the team to get Yeah, in sure, touch sure. with you as No well. problem, ma'am. No problem. Thanks a Yeah. lot. Okay, sure. It was Thank you so really much. a good informative session. We need so many sessions like this, ma'am. We're so glad, ma'am, that this was of great use to you. Yeah. Thank Thank you you. so much, ma'am. Thank you so much. Thank you.
Please do Ma'am, inform us whenever such sessions are there so that we all can join. Yes, yes, ma'am. We would really suggest ki on Teacher Talk app, you can post what kind of sessions you need. We've Fine. created a discussion Fine. forum as well. Fine, fine. And we'll be creating opinion polls. You can surely let Sure. us know what kind of sessions you would Sure. like. Sure. And based on that, we will surely try to get in the best facilitators possible for you all. Very, very, very nice of you, ma'am. Thanks a lot. Thank you so much. Ma'am, ma'am. 1 minute. Ma'am, I Yes. have one doubt. Before Yes, ma'am. 2-3 sessions I have attended, but I didn't download the certificate. The problem is that after chat, Mhm. where I will go, that I forgot it really. I have before that lot of certificate downloaded, but now this time 2-3 certificate I am not downloaded. Then chat box I came. Then after that, what I want to do next step? Ma'am, I will just, in case if it's possible, I will just ask the team to get in touch with you because we'll have to just check if the certificate has been uploaded for you. We'll just check and I'll immediately ask the team to speak to you on it. Okay, thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Sure, anytime, ma'am. Thank you. Welcome, ma'am. अजून कोणाला काही डाउट्स, एनी डाउट्स विथ रिगार्ड्स टू टीचर टॉक किंवा काही सजेशन्स? एक्सक्यूज मी मॅम, हा मॅम बोला ना. क्रिएट आता टीचर टॉक ऍप वर लेट्स गेट स्टार्टेड म्हणजे मी माझं इन्फॉर्मेशन टाकली आहे, तर क्रिएट 6 डिजिट पिन, तर आपण कुठलाही हा. नंबरच टाकू शकतो का तिथे? कुठलाही नंबर? हो हो मॅम, नंबरने तुम्ही हे करू शकता, पिन क्रिएट करू शकता. ओके ओके मॅम. आणि तो पिन मग कशासाठी यूज होईल? तुम्हाला लॉग इन करण्यासाठी, ऍप ओपन करण्यासाठी, इन केस अच्छा. कधी तुमचं लॉग आउट झालं तर परत लॉग इन करण्यासाठी. ओके ओके, सो इट इज फॉर दॅट ओनली. ओके, येस येस, थँक्यू. थँक्यू. आय ऍग्रीच्या तिथे हा आलं, कंटिन्यू. येस. प्लीज सिलेक्ट प्रोफाईल इमेज म्हणतायत मॅम ते. हा, तुम्हाला फोटो तुमचा काढून फोटो काहीतरी तिकडे हे करावं अच्छा. लागेल मॅम, अपलोड करावं लागेल. थँक्यू मॅम. शुअर, थँक्यू सो मच. हॅलो, आय थिंक येस येस, बोला ना. हा मॅम, मला ना लिंक नाही येत आहे मला आता ग्रुपवर, मराठीच्या त्या ग्रुपवर दिसली म्हणून मी जॉईन झाले, पण मला पर्सनली बरं. नाही आली होती. हा, पर्सनली नव्हती अं, म्हटलं, जसं सगळ्यांना तुम्ही म्हणतायत ना सेंड केली आहे. आता नाही तुम्ही आता फीडबॅक फॉर्म भरलात ना मॅम, ते वी हा विल भरलाय रजिस्टर मी. युअर नंबर. हा हा, केलाय. तुमचा नंबर आता रजिस्टर झाला ना, हा. तर पुढचे सगळे जेवढे इव्हेंट्स आहेत सगळे हा डिटेल्स तुम्हाला पर्सनली. पर्सनल हा पाठवू. ओके, येस थँक्यू येस. मॅम. या आधी यायचेत मॅडम, आता एवढ्यातच बंद झाले आहेत ते, आधी यायचेत मला. अच्छा, हा बरं हा बरं, हा नक्कीच. विल सी टू इट, ठीक आहे विल स्टार्ट ना. सेंडिंग. ओके ओके, थँक्यू मॅम. थँक्यू सो मच. पोळी देऊ. हा सर, तुम्ही काय बोलताय का? प्रशांत सर. हा मॅम, हे जे मीटिंगच आहे ना मॅम, आम्हाला मी बरेच वेळा ट्राय केलेला आहे, तर त्याच्यामध्ये म्हणजे लिंक जॉईन होत नाही मॅम. लिंक दिसत नाहीये तुम्हाला? त्यावेळेस एक मिनिट मॅम, हो. हा, लिंक दिसत नाही मॅम, लिंक दिसत नाही मला. तर ते का होतं ना सर, काय होतं मेनली तुम्ही आमचा नंबर सेव्ह नाही केलात ना, तर तुम्हाला ते लिंक क्लिकेबल होत नाही. तर तुम्ही इधर नंबर सेव्ह करा किंवा त्या मेसेजवर फक्त एक फुल स्टॉप किंवा एक काही तुम्ही मेसेजला रिप्लाय केलात ना, तर लिंक विजिबल होऊन जाईल तुम्हाला. ओके ओके मॅम, ओके, चालेल. शुअर. ओके, थँक्यू. ओके, वेलकम मॅम. Thank you so much to all the participants. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am.